Hello children, welcome to your English video class. Children, I hope your studies are going well and you all are happy, safe in your homes. Children, studies are going in your online class and video class. Do attend both the classes, do watch videos, do attend online classes and clear your doubts if you have any and complete your work. In English, we are doing chapter 4, that is the ant and the dove. This chapter is from main course book. Okay. And explanation part I have already completed, and two of the exercise comprehension A and B I have completed for you. In today's video, we'll be doing C, exercise C, and then we'll start grammar. Children, let's have a quick recapitulation of the chapter, a quick revision kar le. In this chapter, there was an ant and there was an dove. The ant was searching for food near river bank and he got a grain. He felt very excited. He decided to take that grain to his home, but what happened? Suddenly a wind blew him into the river. The ant fell into the river. It started struggling to save himself from drowning. He started shouting, "Help, help, help." There was a dove who was sitting on a tree nearby. He heard the sound of ant, and when he saw that the ant was in trouble, she decided to help him. How did she help? She plucked off a leaf from the tree and dropped that leaf into the river near that ant. The ant climbed onto that leaf and he reached the river bank safely. Then the ant said thank you. He thanked dove for saving his life and said that he will remember this act of kindness forever. Because of the dove, the ant's life was saved. Then after a few weeks, one day that dove was resting on a tree when a hunter saw that dove. The hunter now liked that bird, liked in the sense he wanted to kill that bird, maybe for fun, maybe for food, but he wanted to kill the bird. So he hid himself behind the bush. He hid himself behind a bush and took aim at the dove. At the same time, the ant saw the hunter. At the very moment, the ant saw the hunter taking aim at the dove. Now the ant thought that my friend is in danger and must help him. I have very less time. So what he did, the ant quickly crawled and the ant quickly crawled inside the boots of hunter and stung him, pricked him. The hunter, who was aiming at the dove and was about to shoot, lost his balance and he missed his aim. The gun shot, but it could not kill the bird because he missed the aim, and the sound of that bullet made the dove alert. The dove flew away. Then the dove thanked ant for saving her life. Because of ant, the dove's life was saved. So from that day onwards, the ant and the dove, they became very good friends. They become best friend, inseparable friend. So moral of the story is, if you do good, the good will come back to you. In this case, both ant and dove, they saved each other's life. The initiative was taken by dove. Dove first helped ant and then in return ant also helped dove. एक ने अच्छा काम किया तो बदले में उसे अच्छा ही मिला. ये था चैप्टर और इसका हमने कॉम्प्रीहेंशन ए किया था, कंप्लीट द फॉलोइंग, एंड वन इज़ डन एंड दैट वी हैव कंप्लीटेड. इफ़ यू हैव सीन द प्रीवियस वीडियो देन यू मस्ट बी नोइंग दैट ऑल्सो. बी भी हम कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ मूविंग ऑन टू सी, दैट इज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हमारा सी जो एक्सरसाइज है वो है आंसर द following questions.
answer the following questions. Children, the first question is, what happened to the ant? First question is, what happened to the ant? ant के साथ क्या हुआ था? The ant fell into the river. You can write the ant fell into the river, or you can say that a strong wind blew the ant into the river. Both the way it is correct. A strong wind blew the ant into the river. I will write below. Okay, a strong wind blew the ant into the river. एक तेज हवा के झोंके ने उस एंट को पानी में, रिवर में गिरा दिया था. Okay, or you can write the ant fell into the river. That will also be correct. The ant fell into the river. Next, question number 2. How did the dove help the ant? How did the dove help the ant? Dove ने किस तरह से ant की help की? Let me write the question first. How did the dove help the ant? Answer. How did the dove help the ant? Dove ने कैसे ant की help की? The dove plucked off a leaf from a tree and dropped it into the river near the ant. The ant climbed onto the leaf and reached river bank safely. Okay, so ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा. Let me see whether the whole thing will come in the space or not. Okay, now we have a space. We'll write the dove, P-L-U-C-K-E-D, plucked off. The dove plucked off a leaf and जगह है, आगे लिख देते हैं, dropped it into the river, dropped it into the river near the ant. Near the ant. Okay, the ant climbed onto the leaf, and reached the river bank safely. River bank safely. Let me read this for you. See, the dove plucked off a leaf and dropped it into the river. पानी में गिरा दिया. Near the ant, ant के पास. The ant climbed onto the leaf and reached the bank, river bank safely. और वो सुरक्षित river bank पर पहुंच गई. You can note it down, then I will erase it.
आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए या पॉज करके इसको लिख लीजिए, देन आई विल इरेज इट. ओके. Next question, question number 3. Question number 3 is, what did the ant do when he saw the hunter take aim? Let me write the question. What did the ant do when he saw the hunter take aim? The hunter take aim. What did the ant do when he saw the hunter take aim? जब उसने हंटर को एम लेते हुए देखा, निशाना लेते हुए देखा, तो एंट ने क्या किया? The ant quickly crawled inside the hunter's boot and stung his ankle. Okay? When the ant saw the hunter take aim, aim इधर आएगा. Okay, take aim. He Quickly, he quickly crawled inside the hunter's boot. And stung his ankle. Okay? When the ant saw the hunter take aim, he quickly crawled inside the hunter's boots and stung his ankle. वो जल्दी से झट से हंटर के बूट में घुस गया और उसके एंकल पे प्रिक किया, स्टंग कर दिया, डंक मार दिया. ठीक है? This is how he helped his friend Dove. Can you think of a moral for this story? Write it down. Question number 4. Can you think of a moral for the story? Write it down. क्या आप इस स्टोरी का कोई मॉरल बता सकते हैं? What is the moral of the story? What is the moral of the story? That if we do good to others, the good will come back to us. या फिर we should always help others. आप लिख सकते हैं यहाँ पर आंसर में any one moral you can write. The moral of the story is, if you do good, good will come back to you.
इफ़ यू डू गुड, गुड विल कम बैक टू यू। अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। या आप ये भी बोल सकते हो, ये मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ वी शुड ऑलवेज हेल्प अदर्स, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये मॉरल भी आप लिख सकते हो। चलिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। नोट कर लीजिए इसको। आई एम गोइंग टू इरेज इट। अब इसको इरेज कर रहे हैं। So children, these are the 4 questions from the chapter. Okay, now the next exercise is Grammarly. जो हमारा next exercise है वो है GRAMMAR, Grammarly. Grammarly is the next part, and it is related to pronouns. किससे related है ये? Pronouns. Pronouns क्या होता है? Nouns हमने पढ़ा था, ग्रामर बुक में भी पढ़ा था। पीछे जो MCB मेन कोर्स बुक के जो चैप्टर्स हैं आपके पीछे के, उसमें भी हमने nouns के बारे में पढ़ा। What are nouns, common nouns and special nouns के बारे में हमने पढ़ा। Now talking about pronouns. Children, pronouns are the word that are used in place of nouns. Okay? The words which are used in place of nouns. नाउ चिल्ड्रन, नाउन हमें पता ही है। प्रोनाउन क्या होता है? द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। नाउन की जगह पर जो वर्ड यूज़ होगा दैट इज़ प्रोनाउन। अभी नाउन तो आपको पता है कि कोई भी नाम, एनी नेम इज़ कॉल्ड नाउन। तो प्रोनाउन हम यूज़ क्यों करते हैं चिल्ड्रन? फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस। अपने सेंटेंस को बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है। कभी कभी एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करना इज़ नॉट विल मेक द सेंटेंस अगली। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे किसी का भी नाम हम लिख देते हैं, मोनू इज़ अ गर्ल। मोनू स्टडीज़ इन क्लास 2. Mono likes to read books. Mono likes to draw. Mono likes drawing. Mono likes painting. अब यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने मोनू मोनू लिखा है। मोनू 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 मोनू, देखो जगह जगह मोनू है। ये हमने नाउन यूज़ किया है ना। मोनो इज़ ए गर्ल। मोनो स्टडीज़ इन क्लास 2. मोनू लाइक्स टू रीड बुक्स। बुक्स लिख दिया है मैंने। मोनू लाइक्स टू रीड बुक्स। मोनू लाइक्स ड्राइंग। मोनू लाइक्स पेंटिंग। तो ये बार बार मोनू 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 कर रहे हैं हम। मोनू लाइक दिस, मोनू लाइक दैट, मोनू इज़ दिस, मोनू इज़ दैट। बार बार मोनू मोनू बोलना सेंटेंस को थोड़ा सा प्रॉपर नहीं रह रहा है। सेंटेंस इज़ नॉट लुकिंग गुड, नॉट लुकिंग प्रॉपर। अगर हम इसकी जगह पर, मोनू की जगह पे कुछ और यूज़ करें, she and she। अब देखिए, मोनो इज़ अ गर्ल,
She studies in class 2. She likes to read books. She likes to read books. एक मिनट. She likes drawing and painting. Monu is a girl. She studies in class 2. She likes to read books. She likes drawing and painting. अब बार बार हमने मोनू नहीं लिखा, लेकिन हमें समझ में तो आ रहा है ना. Who studies in class 2? यहाँ लिखा है she studies in class 2. अब ये she कौन है? कौन क्लास 2 में पढ़ता है? मोनू. हमने यहाँ मोनू नहीं लिखा है, लेकिन हमें पता है कि ये she किसके लिए है? मोनू के लिए है. She likes to read book. उसे बुक पढ़ना अच्छा लगता है. किससे बुक पढ़ना अच्छा लगता है? मोनू को. यहाँ मोनू नहीं लिखा है, लेकिन हमें पता है कि ये मोनू के लिए ही बोला जा रहा है. शी लाइक्स ड्राइंग एंड पेंटिंग. उसे ड्राइंग करना और पेंटिंग करना अच्छा लगता है. किसे? मोनू को. फिर हमने मोनू नहीं लिखा है, यहाँ मोनू नहीं लिखा है, शी लिखा है ना. लेकिन हमें पता तो चल रहा है ना कि ये किसकी बात कर रहे हैं. यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ मोनू की ही बात कर रहे हैं. मोनू एक लड़की है. शी स्टडीज़ इन क्लास 2. वो क्लास 2 में पढ़ती है. उसे बुक पढ़ना अच्छा लगता है. उसे ड्राइंग और पेंटिंग करना अच्छा लगता है. तो हमने एक ही बार मोनू लिखा, बाकी बार कहीं भी उसका नाम नहीं लिखा है. लेकिन फिर भी हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर बात किसकी हो रही है? मोनू की बात हो रही है. ठीक है. तो हमने मोनू की जगह पे क्या यूज़ किया? शी, है ना. मोनू ना यूज़ करके उसके जगह पे हमने यूज़ किया शी. तो शी क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया. ठीक है. जो हमने नाउन की जगह पे यूज़ किया ना. मोनू इज़ नाउन. मोनू इज़ द नेम. मोनू नाम है, लेकिन शी जो है वो नेम नहीं है. नेम की जगह पे हमने इस वर्ड को यूज़ किया है. तो शी क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया. ठीक है. सिमिलरली व्हेन आई से Ritesh is a smart boy. He is an intelligent student. अब यहाँ पर रितेश लिखा है, यहाँ पे ही लिखा है. Ritesh is a smart boy. He is an intelligent student. अब ये ही कौन? रितेश. रितेश एक स्मार्ट बॉय है, वो एक बुद्धिमान स्टूडेंट भी है. ही इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट. तो यहाँ पर रितेश की जगह पे हमने यूज़ किया ही. मतलब रितेश का हमने नाम नहीं लिखा, लेकिन हमें पता है कि ये किसके बारे में बात हो रही है? रितेश के बारे में बात हो रही है. ये हमें कैसे पता चला? ही के या ही जो है वो रितेश के लिए है. वो बोलते हैं ना, वह हिंदी में बोला वह. रितेश एक स्मार्ट बच्चा है, वह एक बुद्धिमान स्टूडेंट है. वह मतलब रितेश, ही मतलब रितेश. तो यहाँ पर अगेन हमने रितेश का नाम नहीं लिखकर उसकी जगह पे ही यूज़ किया. इसका मतलब है कि ही भी प्रोनाउन है. ठीक है. देखो, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड. Children are playing in the ground. Okay? Children are playing in the ground. They are making noise. Okay? Children are playing in the ground. They are making noise. बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं और वो शोर मचा रहे हैं. They are making noise. अब कौन शोर मचा रहा है? दे, वे सब. कौन वे सब? बच्चे. तो अब यहाँ तो हमने नहीं लिखा चिल्ड्रन, या हमने क्या? चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड. चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइस नहीं लिखा है हमने. ठीक है. चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड. यहाँ पर हमने चिल्ड्रन नहीं लिखा है कि चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइस नहीं लिखा है.
हमने क्या लिखा है, दे आर मेकिंग नॉइस, वो शोर मचा रहे हैं। वो कौन, चिल्ड्रन, है ना। यहाँ पर चिल्ड्रन नहीं लिखा है तो भी हमें पता है कि ये चिल्ड्रन के लिए ही बात की जा रही है, बच्चों की ही बात हो रही है यहाँ पर। तो ये दे क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। यहाँ पे हमने नाउन नहीं यूज़ किया, ये चिल्ड्रन इज़ नाउन, बट दे नाउन नहीं है, नाम नहीं है, तो दे क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। दे इज़ ऑल्सो प्रोनाउन। I have a small bag. It is purple in color. I have a small bag. It is purple in color. मेरे पास एक छोटा सा बैग है और वो पर्पल कलर का है। इट इज़ पर्पल इन कलर। क्या है पर्पल कलर का, बैग, है ना, बैग की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमने बैग लिखा है, लेकिन इस लाइन में कहीं भी हमने बैग नहीं लिखा है, लेकिन पता है कि बैग ही है जो पर्पल कलर का है। कैसे पता चला, इट से पता चला, है ना। आई हैव अ स्मॉल बैग, इट इज़ पर्पल इन कलर। तो ये इट क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। वी हैव नॉट यूज्ड बैग वर्ड इन एनी पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस। कहीं बैग नहीं लिखा है, लेकिन पता है कि पर्पल क्या है, बैग ही है जो पर्पल है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस वर्ड इट, ठीक है। तो इट इज़ प्रोनाउन। इट क्या है, प्रोनाउन है। इट इज़ प्रोनाउन। Okay, so Komal and I are neighbors. We share same apartment. Yeah, we live in same apartment. We सोसाइटी कर देते हैं जिसमें आप ज़्यादा फेमिलियर। कोमल एंड आई आर नेबर्स, वी लिव इन सेम सोसाइटी। मतलब कोमल और मैं, हम नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, हम एक ही सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा वी। अब वी मतलब कौन, वी मतलब कोमल और मैं। कोमल और मैं, हम दोनों एक ही सोसाइटी में रहते हैं। मैंने कहीं भी यहाँ पर कोमल और मैं नहीं लिखा है, कोमल एंड आई नहीं लिखा है, लेकिन पता है कि हम दोनों एक ही सोसाइटी में रहते हैं। कैसे पता चला, थ्रू दिस वर्ड वी। हम मतलब कोमल और मैं। कोमल और मैं नेबर्स हैं, हम एक ही सोसाइटी में रहते हैं। हम मतलब कोमल और मैं। वी में कौन आ गया, कोमल भी आ गई और मैं, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन हुआ, ठीक है। इवन आई जो है वो भी प्रोनाउन है, जो अपना नाम। मैंने ये नहीं बोला ना कोमल एंड वंदना आर नेबर्स, मैंने अपने लिए क्या यूज़ किया, आई। सो आई इज़ ऑल्सो प्रोनाउन। आई जो है वो भी प्रोनाउन है, दिस इज़ ऑल्सो प्रोनाउन, ये भी प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपना नाम नहीं लिखा है। मैंने नहीं लिखा है कि कोमल एंड वंदना आर नेबर्स, यहाँ मैंने आई लिखा है, तो आई भी नेबर है, क्योंकि मैंने अपना नाम नहीं लिखकर उसकी जगह पर आई लिखा है, ठीक है। प्रोनाउन को थोड़ा और डिटेल में हम पढ़ेंगे और फिर इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज करेंगे। विल डू द एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दिस इन द
नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करूँगी कि प्रोनाउंस कौन कौन से हैं, और फिर जो फिल इन द ब्लैंक्स है दैट वी विल डू, एंड वी विल डू दैट इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू.